Jai Hind everybody, welcome to the biology class. So today we are going to start a new chapter, that is biological classification. As the name suggests, in this chapter we'll be studying different types of classification given by different scientists about that living organism, that is plant, animal. So different classification were proposed. So since from the early time, you can say, scientists they were working on the classification pattern. Okay, and various classifications, taking various classification depending on the various characters, it was proposed by different scientists from time to time. So let's start with that. So earliest, if you talk about Aristotle was the scientist who used morphological characters. उन्होंने सिर्फ morphological characters use किए to classify plants into trees, herbs and shrubs. And then he also divided animals. उन्होंने plants को तो herb, shrub और trees में divide कर दिया, और animals को he has divided into two groups, that is the one which has red blood cells and the one which do not have. So now he also took the criteria like the organism which live on land or in water or in air. So but his classification was not accepted. It was not universally accepted, because it does not give the valid classification, techniques of classifying the organism, because he took the concept of the organism living on land, water and air. Now what happened, if you talk about water में हमें plants भी मिले, water में हमें animals भी मिले. So this type of classification was not valid. So what happened then? A scientist called Linnaeus, he came. He is also known as father of taxonomy, as you all know, and he proposed two kingdom classification. उन्होंने दो kingdom classification दिया, and this was he divided the living organism into plantae and animalia. जितने भी plants थे उनको सबको plantae में रख दिया, और जितने भी animals थे, whether bacteria or protozoa whatever, so सबको उन्होंने animal में रख दिया. But again this system was discarded. It was not accepted, because this system does not distinguish because of few reasons. First thing was, this system does not distinguish, it did not differentiate between eukaryotes and prokaryotes. Secondly, it did not differentiate unicellular and multicellular organism. Then also photosynthetic and non-photosynthetic organism like fungi, they were kept in a same plant group. So that's why this system was not accepted, because it did not give the correct classifying criteria. Okay, so now what happened after this? One more scientist came forward, and he was Ernest Mayr. Okay, as you all know, he is also known as the Darwin of 20th century, that we have already discussed in the first chapter. So he proposed three kingdom classification in 1866, and what he did, apart from plantae and animalia, he introduced one more kingdom, and that was protista. उन्होंने इसके अलावा एक और किंगडम को प्रपोज किया, और वो था प्रोटिस्टा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? सो दिस सिस्टम आल्सो not accepted, because again this protista, they are the unicellular organism. So this was also not accepted, because it did not give the correct classification of all the animals. ठीक है, सारे एनिमल, सारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इसने जस्टिफाई नहीं किया. सो अगेन दिस वाज discarded. Now then कोपलैंड आए in 1956, और इन्होंने एक और किंगडम को प्रपोज कर दिया,
ओके, एक और इंक्लूड कर दिया यू कैन से, और उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट वाज मोनेरा उन्होंने और इंक्लूड कर दिया। अब क्या हुआ, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा और मोनेरा, ये 4 किंगडम्स देयर वर। बट अगेन अब बैक्टीरिया एंड फंजाई वर लेफ्ट, बिकॉज प्लांटी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, एनिमेलिया में भी, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर आ गए, ओके, और मोनेरा में भी प्रोकैरियोट्स लिए, बट स्टिल he did not give any classification for bacteria and fungi कि where to keep this. Now उसके बाद आए साइंटिस्ट R.H. Whittaker. In 1969 he proposed 5 kingdom classification, and this kingdom it has categorized, it has classified all the animals. Okay, so this kingdom was universally accepted by everyone. So he took what were the basis of the classification, उन्होंने cell structure लिया, okay, सेल स्ट्रक्चर लिया कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिया, दैट वाज द प्लांट बॉडी, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं, और देन उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिया, वेदर इट इज़ सेक्चुअल और एसेक्चुअल, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया कि वेदर इट इज़ ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, फिर द लास्ट basis of classification was evolutionary or phylogenetic relationship कि how the organism is related to the other organism, दूसरे organism के साथ वो क्या relationship शो कर रहा है। तो ये इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, ओके, और ही एंड देन ही प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि था Plantae, Animalia, Protista, Monera and Fungi. Now, after that, there was another scientist named Carl Woese. What he said, उन्होंने बोला कि नहीं, 5 किंगडम नहीं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने जो किंगडम मोनेरा था उसके उसके 2 और किंगडम्स कर दिए। ही हैज़ डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 मोर किंगडम्स, एंड दैट वाज आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। बट इट वाज नॉट, इट यू कैन से इट इज़ नॉट पॉपुलर, और हम सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, और जो मोनेरा एंड आर्किया है दैट वी स्टडी अंडर, मोनेरा और आर्किया है दैट वी स्टडी अंडर, मोनेरा और यू बैक्टीरिया जो है, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, दैट वी स्टडी अंडर मोनेरा ओनली, ठीक है। उन्होंने उन्होंने मोनेरा जो था उसके 2 पार्ट्स कर दिए थे, 2 किंगडम्स कर दिए थे, दैट वाज आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, बट वी स्टडी देम बट नॉट एज अ सेपरेट किंगडम, हम अलग से किंगडम्स में नहीं पढ़ते हैं, बट वी स्टडी इन मोनेरा ओनली। now we will just have the characters, हम सारे ये 5 किंगडम्स थे उनके कैरेक्टर्स एक बार ब्रीफ में पढ़ लेंगे बिफोर गोइंग टू द डिटेल में पढ़ने से पहले हम एक बार ब्रीफ में सारे कैरेक्टर स्टडी करेंगे, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि हर किंगडम में क्या क्या कैरेक्टर्स लिए गए, किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो this is your a sort of table, in the form of table I have prepared, so this will be easy for you to memorize. Okay, so now he has given 5, R.H. Whittaker has given 5 kingdom classification, and what he took the criteria, the first was, as you can see, it was prokaryotes. So first was prokaryotes. So prokaryotes में क्या था, मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे दे ऑल वर केप्ट अंडर मोनेरा, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी जो 4 किंगडम्स थे दे ऑल कंटेन यूकैरियोट्स। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ये आपको मेमोराइज करनी है, ओके, कि मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, विच हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ओके, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, अ न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर वॉल, ओके, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लोलस। सो ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस था, दैट न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, उसको न्यूक्लियोइड बोला,
okay, and rest of the eukaryotic थे बाकी, which contain a well defined nucleus. okay, so this was the first, ये clear हो गया सबको. okay, कि only prokaryotes were kept in, उन्होंने पहला क्राइटेरिया ये लिया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे दे आर केप्ट इन मोनेरा किंगडम. ओके, नाउ इस मोनेरा किंगडम को, नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी मोनेरा. इनको इन्होंने तीन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में इनको डिवाइड किया गया, तीन क्लास में हम कह सकते हैं. दैट वाज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड द लास्ट वाज माइकोप्लाज्मा. इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म आए. ओके, जो आर्की बैक्टीरिया थे दे वर द प्रिमिटिव, वो सबसे पहले इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म थे. आर्की माने होता है ओल्ड, दे वर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, और इसमें क्या क्या है, इसमें इन्होंने तीन तीन में कैटेगराइज किया, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स. ये जो आर्की बैक्टीरिया थे दे कैन सर्वाइव इन द हार्श इन्वायरमेंट. बहुत एडवर्स उनके पास कैपेबिलिटी थी एडवर्स इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की. ओके, और वो क्यों थी, जो उनका सेल वॉल था, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ पॉलीसेक्राइड, कुछ स्पेशल मटेरियल की बनी होती है पॉलीसेक्राइड, और जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन. बट पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें एब्सेंट था, because in rest of the bacteria you will find peptidoglycan, but इसमें peptidoglycan नहीं present था, because they need to survive in very very adverse condition. फिर यू बैक्टीरिया आए. यू बैक्टीरिया में इन्होंने जितने भी ट्रू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया और यू कैन से, वो इन्होंने रखा, और इसको इन्होंने दो में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वाज ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में इन्होंने फर्दर दो में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया ही है स्केप, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आई. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो केमिकल से सिंथेसिस करते थे फूड की, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब से वो सिंथेसिस करते थे, जिसमें एनाबिना नोस्टॉक वाज द एग्जाम्पल. ना उसके बाद आए हिट्रोट्रॉपिक, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट थे. ओके, सो ये थे आपके मॉडर्न बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, और वो ऑक्सीजन, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती थी. ओके, एंड इसमें जो मेन मेंबर था दैट वाज द PPLO, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. और दूसरा इसका कैरेक्टर था माइकोप्लाज्मा का, दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और लास्ट पार्ट था कि दे आर द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल. ये प्लांट्स एनिमल में डिजीज करते थे. डिटेल में हम इसको अलग से पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी किंगडम मोनेरा सेपरेटली. नाउ किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं. एज यू ऑल नो कि जितने भी यूकैरियोट्स थे वो अदर 4 किंगडम्स में रखे गए. अब फिर प्रोटेस्टा की क्या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट था, इसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे. तो अब एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू हैव गॉट कि इन प्रोटेस्टा द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर केप्ट, एंड इन रेस्ट ऑफ द 3 दैट इज फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसमें क्या रखे गए, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए. सो दिस इज अगेन वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि प्रोटेस्टा आर द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोनेरा आर द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, अब इसमें भी हमने फर्दर डिवाइड किए कुछ अलग अलग, इसको प्रोटेस्टा को हम पढ़ेंगे. पहला ग्रुप था क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में क्या क्या है, डेस्मिड्स, डायटम्स, जो कि हम डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी. और ये दे वर द फोटोसिंथेटिक, दे आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ. जैसे साबुन का डिब्बा होता है, बंद डिब्बा, सो 2 हाफ्स होते हैं ओवरलैपिंग. इन द सेम वे द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ्स एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. ठीक है, सिलिका की बनी होती है. दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ क्राइसोफाइट. नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजिलेट्स. एज द नेम सजेस्ट, डायनो माने होता है 2, फ्लैजिलेट्स माने फ्लैजिला. इसमें 2 फ्लैजिला थे, और इसकी सबसे
सबसे जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें जो फ्लैजिला थे दे वर अरेंज्ड एट राइट एंगल. ये जो दोनों फ्लैजिला थे ये राइट एंगल पे अरेंज थे. एज यू कैन सी इन द फिगर दिस इज द राइट एंगल, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स. दे वर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक. नेक्स्ट इज यूग्लॉइड्स जिसमें यूग्लिना आए. इनको मिक्सोट्रॉप्स भी कहा गया. क्यों? क्योंकि इसमें हमें दोनों टाइप का न्यूट्रिशन मिला, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. So such type of organism in the presence of sunlight, when the sunlight is available, they show autotrophic nutrition, but when the sunlight is not available they show heterotropic nutrition. So the important common member is euglena. Then the slime molds. They are the saprophytes. ये saprophytes and they were characterized by making a floating mass over the water bodies. ये floating mass जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम मास, जो कि वो वाटर बॉडीज में बनाते थे, ऊपर तैरती रहती थी. ओके, वी आर गोइंग टू रीड एवरीथिंग व्हेन वी आर टेकिंग दिस किंगडम सेपरेटली. अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं. नाउ लास्ट वाज प्रोटोजोआ विच डज नॉट कंटेन एनी सेल वॉल. ओके, सेल वॉल इसमें नहीं होती थी. ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. एंड देन द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स व अमीबा, एंटमीबा, पेरामीशियम, ये इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे. ओके, सो दिस इज अबाउट द your protista. Now let's come to fungi. Okay, now fungi भी eukaryotes हैं. Now अब हम I have already told you protista were the unicellular, so rest of the three, that is fungi, plantae and animalia, they are the prokaryotes. now important feature है इसमें, अब सब multicellular हैं. ओके, और सेल वॉल इंपॉर्टेंट फीचर है. फंजाई एंड प्लांटी में, इन प्लांटी सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमेलिया नो सेल वॉल. फंजाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज किटिन और चिटिन. चिटिन भी बोलते हैं, काइटिन भी बोलते हैं. एंड इन प्लांटी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फंजाई वर heterotrophs बट प्लांटी वर autotrophs. Now, the mode of nutrition in case of fungi is absorptive type. मीन्स वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस होता है उसको वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं. दे डोंट इंजेस्ट, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और इसमें हम 4 क्लासेस पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. दैट इज़ फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और फंजाई imperfecti. So these are the 4 classes which we are going to study in fungi. In case of algae, they are autotrophs, photosynthetic, cellulosic cell wall, multicellular eukaryotes, and under this we will be studying algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Now lastly we come to the animalia. So all the fungi, plantae, animalia, they are similar except the cell wall, they do not contain cell wall and they show heterotropic mode of nutrition. Okay, so and the mode of nutrition here it is ingestive type, ये ingest करते हैं. Okay, solid food material को they take the food material in the solid form. Okay, ingest करते हैं. Then the important character is they show locomotion. In search of food, in search of mates, they move from one place to another. और इसमें हम पढ़ेंगे chordates and non-chordates. So this was about a summary which we are going to study in this chapter, that is 5 kingdom classification. So one by one we will take all the kingdoms and we will be studying in detail. Okay, so hope you like this video. Stay connected. Okay, thank you.